Good evening, beta. Welcome back to our same physics class and hope everybody is fine at their place. Today we are going to start with our second chapter, that is physical quantities and measurement. Physical quantities and measurement. Before starting the concept given in your book regarding this chapter, I want to talk about these two terms which are written over here. Though these are not explained in your book, but I want that you should know about both these terms. So first we are talking about this particular term, that is physical quantities, because what I think is first you should know about the meaning of the chapter which you are doing over here. Okay, so first we will talk about what are physical quantities. Whenever we are talking about physical quantities, we mean the quantities which can be measured. Okay, so physical quantities, these are the quantities which can be measured. Now how these can be measured? Which can be measured directly or indirectly. Directly or indirectly. This is what we mean with the physical quantities. Now these physical quantities, they can be measured directly with the help of any instrument. Like if I am talking about what is the length of this blackboard, with the help of the scale you can easily measure the length of the blackboard. But some of them are there if I am talking about area. So you cannot find out with the help of scale only. You need to apply some formula to calculate area, but indirectly we can find out the value of area. I am saying it again, please listen to that carefully. I am saying these are the quantities which can be measured. First let's discuss about this. जिनको हम measure कर सकते हैं, नाप सकते हैं. ओके किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे मैंने बोला, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल और मीटर स्केल और इंच टेप, सो दैट वी कैन मेजर डायरेक्टली. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, in area we can measure length directly, we can measure breadth directly, but formula of area we need to find out. We need to apply to calculate area, that is length into breadth. So means directly we are not measuring this quantity, indirectly with the help of the calculations we are getting it. Right, so the physical quantities are the quantities which can be measured directly or indirectly. कोई भी ऐसा quantity जिसको आप सीधा सीधा डायरेक्ट या किसी इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर पाएँ, नाप के बता पाएँ, these are known as physical quantities. Basically when we are talking about physics, we are dividing these physical quantities as fundamental quantities and derived quantities. और सिर्फ इस ऐसे डिवीज़न नहीं होता, फंडामेंटल और डिराइव्ड में भी हम इसको बोल सकते हैं इसका डिवीज़न. और वी कैन से दीज कैन बी इंटरप्रेटेड एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर और वेक्टर में भी डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कैन बी एक्सप्रेस्ड. और इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, देयर आर these physical quantities are categorized into two parts, fundamental quantities and derived quantities. We will do both these but one by one. Okay, first we will be starting with fundamental quantities. These are the quantities, these fundamental quantities, or you can say these are the physical quantities, क्योंकि ये इसी का ही क्या है, आपका टाइप है. So these are the physical quantities. These are what? These are physical quantities which cannot be derived, which cannot be derived from other quantities. मतलब क्या है इसका, जिसको किसी और क्वांटिटी से डिराइव करने की ज़रूरत ना पड़े, जो खुद में एग्जिस्ट करता है. दीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जाम्पल योर लेंथ. लेंथ को आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है बेटा जी,
कहीं से भी डायरेक्टली वो अपने आप में एक क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है और आप उसको जाओगे सीधा स्केल से मेजर कर लोगे. वी कैन टॉक अबाउट अनदर वन, दैट इज मास. किसी भी चीज़ में कितना मास है उसको भी आपको इनडायरेक्टली डिराइव करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में खुद में एग्जिस्टेंस वाली क्वांटिटी है. सो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल. फंडामेंटल मीन्स ये आपकी वो जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो डायरेक्टली एग्जिस्ट करती हैं. दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली. जनरली ज़्यादातर सारी ये डायरेक्टली मेजर हो जाती हैं. दिस कैन बी मास और यू कैन टॉक अबाउट दैट कैन बी टाइम. टाइम को भी आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा आप उसको मतलब वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, डायरेक्टली आप उसको मेज़र भी कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट टेम्परेचर, यू कैन टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. I mean here electric current, not simple current. You can talk about luminous intensity. You can talk about amount of substance. One, two, three, four, five, six, 7. These are the 7 basic fundamental quantities which we are reading in physics. 2 more are there, complementary one, but that is not for your level. You just watch about these only. Fundamental quantities are the basic quantities which cannot be derived from any other quantity, जिसको किसी और से derive करने की ज़रूरत नहीं है. और इनमें basically 7 fundamental quantities हमारे पास है. कितनी हैं? 7. And these are length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. And each can be depicted by a particular unit too. सबका एक unit भी है. Length is measured in meter, mass in kg, time in second, temperature in Kelvin, current in ampere, luminous intensity in candela, amount of substance in mole. But अभी आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है. Only introduction is more than sufficient. Okay, now coming on to the derived, as the name is suggesting this. Derived का मतलब इसको किसी और चीज़ से derive किया गया है. So ये हैं क्या basically? These are the physical quantities. है तो ये भी क्या? Physical quantities. But कैसी हैं बच्चे जी? Which can be, which are, not can be, which are derived from, जो हैं ही, which are derived from other quantities. जिनको हमने दूसरी किसी क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया है या पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट वन, एरिया. एरिया एज सच नहीं कोई एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ पा रहे हो. आपको इसको पढ़ने के लिए लेंथ का ज़रूरत पड़ता है. आपको इसको पढ़ने के लिए फिर से मेज़र करना पड़ता है. लेंथ को और ब्रेड्थ को दोनों को मीटर की टर्म में आप मेज़र करते हो. मीन्स आप इसको डिराइव करते हो किसी एक फार्मूला से. वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सिमिलर वे अनदर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है. वॉल्यूम को आपको डिराइव करना पड़ता है इस फार्मूला से, L इंटू बी इंटू एच. डायरेक्टली वॉल्यूम किसी चीज़ का आप नहीं पढ़ सकते हो. अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, तो आपको इसका लेंथ चाहिए, इसका ब्रेड्थ चाहिए, इसका हाइट चाहिए, तब जाके आप इसका वॉल्यूम मुझे बता पाओगे. बट अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, बस स्केल उठाया और आपने इसको बता दिया. सो मीन्स जो डायरेक्टली आप किसी चीज़ से मेज़र करके बता दें, जिसको डिराइव ना करना पड़े, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़. बट जिनको आपको डिराइव करना पड़े किसी और यूनिट की हेल्प से, डायरेक्टली आप मेज़र ना कर पाएँ, वो कौन सी हो जाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़. इसका एक और एग्जाम्पल जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली आपके सिलेबस के लिए, वो है डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. ये अभी इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज यू पीपल हैव डन इट इन योर लास्ट क्लास 2, 7th में भी किया है. सो एक बार डिस्कस करते हैं, लेटर ऑन वील डू इट इन डिटेल. डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए, तब आप बता पाओगे कि इसका डेंसिटी क्या है. डायरेक्टली आप डेंसिटी ये नहीं, हाँ चलो इसका डेंसिटी बताओ, अरे बस कुछ लगाया ऑपरेटर्स और डेंसिटी हो गया. नो, यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस, यू नीड टू यूज द फार्मूला टू फाइंड आउट द डेंसिटी. सो अगर मैं तुम्हारी क्लास के हिसाब से बोलूँ, बहुत एग्जैक्ट नहीं, बट अगर तुम्हें समझाने के हिसाब से बोलूँ, बेटा जी जिस भी क्वांटिटी को पढ़ने के लिए आपको कोई मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कभी कोई फार्मूला यूज़ करना पड़े, सो उसको हम जनरली रखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में. और जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ से मेज़र कर पाएँ तो उसको हम रखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़. अब ये मत सोचना हमारी बुक में नहीं है और मैडम पढ़ाई जा रही हैं, बट यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. विदाउट दैट डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड आउट की डेंसिटी क्या है, वो तो फिर रट्टा मारने वाली बात होगी, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट वन. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग,
स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज बोला था, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्लास, दैट वी विल डू लेटर, उसको हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट टर्म विच इज गिवन इन दिस चैप्टर दैट इज मेजरमेंट. नाउ कम ऑन टू दिस टर्म, मेजरमेंट. व्हाट इज मेजरमेंट? In junior classes also many times you have done the definition of measurement. For this, first of all, I would like to ask what is the length of the blackboard, and if somebody of you know ki how to find out the length, quickly you will move, just take out the inch tape or the meter scale from the bag, quickly measures that and tell me ma'am 10 meters. ऐसा ही होगा ना, आप मुझे ऐसे ही बताएंगे. ओके, बट आई डोंट वॉन्ट दिस वन. मैंने ये पूछा मेज़रमेंट क्या है, लेंथ तो तुमने बता दिया, उससे मेज़र किया, बट आपने उसको किया कैसे? ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अभी मुझे सिर्फ ये नहीं पूछना कि लेंथ क्या है, लेंथ को आपने मेज़र किया एंड व्हाट इज़ दैट मेज़रमेंट, ये हमको पढ़ना है. सो व्हाट इज़ दैट मेज़रमेंट? लेट्स कम बैक टू द सेम क्वेश्चन. आई आस्क्ड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड. ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा? आई आस्क्ड द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड. But this is unknown to you. You are not aware about this. What is this? This is unknown to you. But how can you find out? You can take a scale, meter scale or inch tape, okay, and then you can find out this value. Then it can be a known value for you. आपको पता चल जाएगा और अब आपके लिए ये unknown value क्या बन गई? known value बन गई. जो नहीं पता था वो अब पता हो गया. किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से. सो आपने क्या किया? unknown को known बनाने के लिए आपने इन दोनों को कंपेयर किया. कैसे कंपेयर किया? ये जितना था लेंथ यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपने नापा. ठीक है, आपने उसको मेज़र किया. मेज़र करने का मतलब आपने कंपेयर किया कि ये आपके इंच टेप के कंपैरिजन में कितना पड़ता है. ठीक है, सो मेज़रमेंट क्या है बच्चे जी? इट इज़ कंपैरिजन. किसका कंपैरिजन था? एक जो आपको अननोन था, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी. कोई भी हो सकती है, ये तो एग्जाम्पल था. अननोन क्वांटिटी किसके साथ कंपेयर किया था? उससे आपने स्केल के साथ. स्केल आपके लिए क्या है? नोन वैल्यू है. क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट. बस यहाँ डेफिनेशन खत्म हो जाती है जनरली, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बेटा जी. एग्जैक्ट क्या है? कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी. क्या? अगर मैंने लेंथ पूछा है तो आप स्केल से मेज़र करोगे. ये नहीं कि स्टैंडर्ड वेट उठा लाए 1 किलो वाला, उसके सामने रख के देखने लग जाओ ना, वो नहीं पता चलेगा. अगर मैंने पूछा है लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड फाइंड आउट करना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने थर्मोमीटर लिया और यहाँ लगा दिया, अब लेंथ पता चल जाएगी. नो, आपको क्या करना है? आपको जो दो चीज़ें आप कंपेयर कर रहे हो वो दोनों आपकी सेम नेचर की होनी चाहिए. मतलब लेंथ कंपेयर करने के लिए लेंथ मेज़र करने वाला ही इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, उसका नेचर वैसा ही होना चाहिए. मीन्स स्केल आपका लेंथ मेज़र करने के काम आता है तो वो उसी नेचर के लिए काम करता है. सो यहाँ जो टर्म आपको ऐड करनी है, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी, क्या? ऑफ सेम नेचर. कैसी होनी चाहिए? दोनों सेम नेचर का. ओके, अब आप इस डेफिनेशन में ये वर्ड ऐड कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर. मतलब जो नोन क्वांटिटी आप मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सेम नेचर का होना चाहिए. मैंने आपको पूछा कि ये शुगर है, इसमें शुगर रखा है मैंने इस बैग में, ये आपका बैग है, इसमें मैंने आपके लिए शुगर रख दिया. ठीक है, मुझे पूछना है कि हाउ मच शुगर इज़ देयर in the bag. In the bag. अब आप क्या करेंगे? You cannot take scale and measure it कि हाँ 6 मीटर शुगर है. No, that is not the correct one. 25 सेंटीमीटर शुगर है ऊपर से. No, that is not the correct one. आपको इसको मेज़र करने के लिए आपको क्या मेज़र करना है? इसका मास मेज़र करना है. तो मास मेज़र करने के लिए मास के नेचर का स्टैंडर्ड वेट लाना पड़ेगा. ठीक है, सो आप मास के नेचर के लिए क्या लेकर आएंगे? अपने स्टैंडर्ड वेट्स लेकर आएंगे. 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का साथ में रखेंगे, कंपेयर करेंगे. जब दोनों सेम आ जाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये 5 kg है, 2 kg है, 3 kg है. मीन्स कोई भी क्वांटिटी मेज़र करने के लिए आपको दोनों
दोनों क्वांटिटीज सेम नेचर की यूज़ करनी है। मुझे कितना टेम्परेचर है, कितना मेरा बॉडी टेम्परेचर है, स्केल लगा के तो नहीं बताओगे ना टेम्परेचर, उसके लिए क्या चाहिएगा, थर्मोमीटर। मीन्स जो चीज़ आपको मेज़र करनी है उसी सेम क्वांटिटी को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को कैरी आउट करने के लिए। फाइन, अभी इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन को। मेजरमेंट इज व्हाट, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। ये अननोन क्वांटिटी का जो आपको नहीं पता है उसका कंपैरिजन है जो आपको पता है उस क्वांटिटी से, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जो ये नोन क्वांटिटी है ये क्या है बेटा जी, ये आपके पास होते हैं स्टैंडर्ड स्केल, स्टैंडर्ड वेट्स, आपका थर्मोमीटर जहाँ आपको स्टैंडर्ड रीडिंग्स पहले से दी गई हैं कि स्केल में सबको पता है हर बार 1 सेंटीमीटर इतना होगा, तो वो स्टैंडर्ड रीडिंग्स कर दी गई हैं आपके लिए। थर्मोमीटर में पता है इतने राइज पर हर बार 1 डिग्री हो जाएगा, तो वो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं एज नोन वन और उनको कंपेयर करते हैं किसके साथ, अननोन के साथ, और जो चीज़ निकल कर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। राइट, अब शुरू करते हैं हम क्या, अब हम शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले कैसे डिनोट करेंगे, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये सीखिए। ओके, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द मैग्नीट्यूड only or sometimes with the magnitude and direction as well. ओके, अभी जो जनरली आप कर रहे हो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला है, तो मैं अभी उसी की बात कर रही हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज इन जनरल इट कैन बी रिटन बाय न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ओके, हाउ इट कैन बी, मैंने एक चीज़ लिख कर दिखाई आपको 5 kg। What is the meaning of this? आपको इससे क्या समझ आता है, इससे दो चीज़ें समझ आती हैं। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मास, आई एम टॉकिंग अबाउट मास, और कितना मास, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट मास, दैट नंबर आई हैव रिटन ओवर हियर। Okay, that means this complete 5 kg that makes how the physical quantities can be represented. ये जो 5 kg मैंने लिखा है ना, ये पूरा 5 kg रिप्रेजेंटेशन मुझे बताता है कि आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऐसे एक्सप्रेस करना है। मींस उसके अंदर दो चीज़ें लिखी होनी चाहिए, एक तो नंबर कितनी है वो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उसका यूनिट लिखा होना चाहिए, ताकि हमको यूनिट से ये पता चल जाए कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। नंबर से ये पता चलेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास। लाइक इफ आई एम सेइंग 10 मीटर, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी विच लेंथ, ये मीटर क्या बताता है आपको, मैं किसकी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, लेंथ या फिर डिस्टेंस। ओके, और कितनी लेंथ और डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, दिस नंबर इज गोइंग टू टेल अस। और ये जो कंप्लीट सेट है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इसको हम जनरली फिजिक्स में क्या बोलेंगे, बार बार मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। ये टर्म बहुत बार आएगी आपकी अभी क्लासेस में, जैसे जैसे आप मूव ऑन करोगे, और उस टाइम में एक मतलब ऐसा ही रहता है कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन, ये मैग्नीट्यूड क्या बला है। मैग्नीट्यूड है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जो आपने इकट्ठा लिखकर दिखाया, ये पूरा मैग्नीट्यूड है किसी एक क्वांटिटी का, ये पूरा एक मैग्नीट्यूड है किसी एक क्वांटिटी का। मैग्नीट्यूड में खाली नंबर नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड में खाली यूनिट नहीं हो सकती, इन दोनों को जब आप इकट्ठा लिखते हैं दैट मेक्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, दैट मेक्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। अब सपोज 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए, आई एम सेइंग दिस इज 10 केल्विन। ओके, दिस 10 केल्विन, इसको मैं क्या बोलूँगी, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इससे आपको और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, विच फिजिकल क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, temperature, because I used Kelvin over here. Okay, and what is the amount of that physical quantity, कितना है, 10। ओके, मतलब इस पूरे को देखकर मुझे क्या समझ आता है, मैंने ये मैग्नीट्यूड लिखा किसी फिजिकल क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट साथ में लिखा, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और ये आपको क्या बताता है, ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, यहाँ से पता चल रहा है दिस इज टेम्परेचर, और इसका अमाउंट कितना है 10, ये आपको यहाँ से पता चल गया।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर फिजिकल क्वांटिटी. अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आप लोगों को पढ़ने के लिए अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट. नाउ इन योर चैप्टर व्हाट इज गिवन टू यू इज, in your chapter we are discussing about your one of the physical quantity, that is density. As I told you, this density cannot be directly measured with the help of any instrument. That can be measured indirectly with the help of a formula. That means this density is a derived physical quantity. This is a derived physical quantity. ओके क्यों है ये आपको समझ आ गया होगा. डिराइव्ड इसलिए बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट. what we need to measure it, we need a particular formula that we are talking about, mass upon volume. Later on we will discuss about this, why it is mass upon volume and all that, but we cannot measure it directly with the help of any of the instrument. We are substituting values of mass and values of volume, and then we can get this value that is known as density. So this density is a derived physical quantity. Fine beta.